Morning, students. Last class we were doing rules for naming organic compounds. Chain rule किया था और number rule. Chain rule means we have to select longest chain and continuous chain of carbon atom. It should be longest, मतलब it contain maximum number of carbon atoms and it should be continuous. Second rule we had done, that is numbering rule. The selected chain, that is called the parent chain, should be given number. Carbon को number देना है, such that all the prefixes, all the substituents, all the side chain alkyl groups will get lowest number. And if two or more alkyl groups are there, we have to see their position. Sum of locants must be minimum, lowest. एक example देखते हैं, फिर next rule. Suppose this is the compound CH3, CH, CH3, here CH, CH2, CH3, and here it is CH3. First of all, we have to select. Suppose we want to give name to this compound. We have to select the longest chain of carbon atom. Chain is selected from any terminal, not from the in between. Longest chain. How to select? Suppose we are selecting chain from this carbon atom. It's 1, 2, 3. इधर जाओगे तो 4 कार्बन होंगे, नीचे आओगे तो 5 कार्बन. 1, 2, 3, 4, 5. This is our parent chain. Maximum carbon 5. Now we have to give the number. How to give number? 1, 2, 3, this 4 and this 5. If we give number to this way, same chain, same compound, but second way of giving number to this parent chain is 1, 2, 3, 4 or 5, either from left to right or from right to left. Which is correct? The correct one is first one, because over there sum of locant is minimum. यहाँ पे इसको 2 नंबर मिला है इस मिथाइल ग्रुप को, इस साइड चेन को यहाँ पे 3 नंबर मिला, 2 + 3 5, सम ऑफ लोकेंट कहलाता है. और यहाँ पे कितना होगा? This methyl attached to third carbon and this methyl attached to fourth carbon, so it is 7. Which is minimum? First one. So first way of giving number is correct. Numbering will be done in such a way that all the sum of locants must be minimum. Minimum sum of locant होना चाहिए. Clear? अब है next rule. Next में ऐसा है कि जब भी हम नाम लिखेंगे, है ना, नेम लिखना है हमको, तो जितने भी अल्काइल ग्रुप्स हैं उनका नेम एज अ प्रीफिक्स लिखना है और उनके नंबर के, उनके जो लोकेंट है उसके साथ लिखना है. जैसे मुझे नाम लिखना है इस कंपाउंड का, ये मिथाइल ग्रुप है और ये सेकंड पोजीशन पे है, तो आई राइट लाइक दिस 2 मिथाइल, लाइक दिस. This prefix side chain is methyl and it is attached at number 2, so I'll write 2 methyl. Suppose I want to write name of this group. This is attached at third position. I'll write 3 methyl. हाइफन लगाना है नाम और नंबर के बीच में. 2 methyl, 3 methyl. Suppose 2 और 3 सेम प्रीफिक्सेस आते हैं, जैसे इसमें है 2 मिथाइल ग्रुप्स हैं. अब ऐसे नहीं लिखेंगे 2 मिथाइल 3 मिथाइल, सबको साथ कैसे लिखेंगे? 2 और 3 पे 2 मिथाइल ग्रुप है तो 2,3 डाई मिथाइल, 2,3 डाई मिथाइल, ऐसे लिखेंगे. 2 मिथाइल है, सो क्या नाम लिखेंगे, क्या प्रीफिक्स डालेंगे आगे? 2,3 डाई मिथाइल. जैसे कोई एक कंपाउंड ऐसा, this is the compound CH3, here CH, CH3, CH3, here also CH3,
अब लिखना, first of all select the long chain, continuous chain of carbon atom. So this is the long and the continuous chain of carbon atom. Maximum carbon it has. Now we have to give the number 1, 2, 3, 4 and this 5. अब 5 है इसलिए वो तो पेंटेन होगा, पेरेंट जो चेन है उसका नाम क्या होगा, पेंटेन, बिकॉज इट हैज 5 कार्बन. 6 होता तो हेक्सेन लिखते, 8 कार्बन का चेन होता तो ऑक्टेन लिखते, और 9 कार्बन का चेन होता तो नॉनेन लिखते. तो ये तो लिख दिया पेंटेन. अब जितने मिथाइल ग्रुप ही बाहर दिख रहे हैं इनको नेम करना है एज अ प्रीफिक्स, आगे लिखना है इनके. अब कौन कौन से पोजीशन पर अटैच्ड है वो नंबर्स हमको डालने हैं. सेम है, चारों के चारों मिथाइल है, 4 मिथाइल है, इसलिए हम क्या नाम लिखेंगे, टेट्रा मिथाइल. अब टेट्रा मिथाइल कहां कहां प्रेजेंट है, टेट्रा मिथाइल अभी कहां कहां प्रेजेंट है, तो एक 2 पे है, कॉमा 2 3 पे है और एक 4 पे है. तो कैसे नेम दोगे, 2 3 3 4 टेट्रा मिथाइल पेंटेन. 2 3 3 4 नंबर सारे कॉमा से, और नंबर और इसके बीच में स्लैश, फिर कोई गैप नहीं आना चाहिए, फिर सब साथ में लिखना है. 2 2 2 3 3 4 टेट्रा मिथाइल पेंटेन, ऐसे नेम करेंगे. सपोज अलग अल्काइल ग्रुप्स हैं, जैसे ऐसा कंपाउंड है CH3 CH, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH2 CH3 है, फिर इधर CH2, फिर इधर CH3, ऐसा है. ये कंपाउंड है. अब इसमें सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है. कैसे सेलेक्ट करेंगे लॉन्ग चेन, दिस इज द पेरेंट चेन which we have to select because it contain maximum number of carbon atom 1 2 3 4 5. we can also select 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की मैक्सिमम चेन बनेगा. अब इसको नंबरिंग करना है सच दैट ये प्रीफिक्सेस जो हैं नियर बाय हो, इनका सम ऑफ लोकेंट मिनिमम हो. तो हम इधर से नंबर करेंगे 1 2 3 4 और दिस 5. इफ यू मूव दिस वे 1 2 3 4 5, then these will be locant, sum of locant ज्यादा हो जाएगा, sum of locant must be minimum. So numbering is done left to right. अब जो दो अल्काइल ग्रुप्स है, ये तो 5 कार्बन हो गए इसलिए इसका नाम तो पेंटेन हो जाएगा, है ना. दिस इज नेम्ड एज पेंटेन बिकॉज इट हैज 5 कार्बन. नाउ देयर आर 2 अल्काइल ग्रुप्स, ब्रांच चेन है, वन इज मिथाइल, अदर वन इज इथाइल. अब किसको पहले लिखेंगे किसको बाद में, अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है. अगर दो से ज्यादा अल्काइल ग्रुप अलग अलग प्रेजेंट है, इसमें कैसे सारे सेम थे तो हमने डाई ट्राई टेट्रा यूज किया, 2 होंगे तो डाई, 3 होंगे तो ट्राई, लेकिन ये दोनों अल्काइल ग्रुप ही अलग है तो फिर आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है. अल्फाबेटिकली इथाइल पहले आता है, इसका नाम इथाइल है, ई पहले आता है, इसका नाम मिथाइल है, एम बाद में आता है अल्फाबेटिकली, तो ई को पहले लिखेंगे, इथाइल पहले लिखेंगे विद इट्स नंबर. सो इट वुड बी 3 इथाइल, 2 मिथाइल, after that pentane. 3 ethyl 2 methyl pentane, because 2 different alkyl groups are there, so they will be named alphabetical order. So if 2 or more same alkyl groups are there, we use the prefix di tri tetra. Di for 2, tri for 3, tetra for 4 and so on forth. While writing a name for different alkyl groups, we have to follow alphabetical order. नंबर और नाम के बीच में स्लैश, और अगर 2 नंबर साथ में आते हैं तो कॉमा से सेपरेट करना है, बाकी पूरा नाम हमको एक साथ लिखना है. क्लियर? नेक्स्ट रूल, suppose this is the compound CH3 CH2 CH, here CH3 CH CH2 CH3
CH2 and CH3. This is the compound. Rule same follow करना है. First of all, select the longest continuous chain of carbon atom. So that will be this carbon chain. How many carbon atom it has? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Ano chale. So straight chain contains maximum number of carbon atom. Now we have to give the number to this, either from left to right or from right to left. पहले left to right करते हैं. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. What is the sum of locant? This methyl group is at 3rd carbon. Ethyl group is placed at 4 carbon. So sum is 7. Sum is 7. अब इसी में हम इसी कंपाउंड में right to left भी नंबरिंग कर सकते हैं. There are two ways of giving numbers to the chain, either from left to right or from right to left. Suppose this is the select chain and we are giving number from this side. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Here also in second type also, what is the sum of locant? Ethyl group is at 3rd position. Methyl group is at 4th position. So sum is 7. अब ऊपर से करो तो भी 7 आ रहा है, नीचे से करो तो भी 7 आ रहा है. Now which is correct? Which is correct way of giving number? इस सिचुएशन में अगर सम ऑफ लोकेंट सेम आता है, होता है ना कंडीशन अप्लाइड, बिग बाजार वगैरह में सामान खरीदने जाओ, एक टी शर्ट के साथ दूसरा टी शर्ट फ्री, प्रोवाइडेड दोनों टी शर्ट की कीमत 1000 रुपए होनी चाहिए. ऐसे कंडीशन अप्लाइड होती है ना. अपन ऐसा सोच लेंगे एक के साथ एक फ्री और लेने लग जाए तो थोड़ी चलेगा. कंडीशन अगर अप्लाइड है कि दोनों टी शर्ट की जो कीमत है वो 1000 रुपए होगी तो ही आपको एक के साथ एक फ्री मिलेगा. तो यहाँ पे क्या कंडीशन अप्लाइड है? इफ द सम ऑफ लोकेंट इज सेम फ्रॉम बोथ द साइड, लेफ्ट टू राइट, right to left, sum of locant is same, then the one which comes alphabetically first will be given least number. The one which comes alphabetically first will be given least number. अब इसमें दो हैं, एक मिथाइल एक इथाइल है. अल्फाबेटिकली इथाइल पहले आता है तो इथाइल को मिनिमम नंबर मिलना चाहिए. अब किसमें इथाइल को मिनिमम मिल रहा है? इसमें मिल रहा है. So this is the correct way of giving number. Condition applied. मैंने आपको बोला ना, बच्चे क्या करते हैं, शुरू से अल्फाबेटिकल ऑर्डर देख के नंबरिंग करने लग जाते हैं स्टार्टिंग से. कब आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर को या अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो सबसे कम आता है उसको नंबर देना है. किसको? When the sum of locant is same, then only you have to see this rule here. You have to follow this rule. Okay. So if sum of locant is same, then the one which comes first in alphabetical order will be given number, minimum number. So this is the correct way of giving number. Now what is the name of this compound? This is 3-ethyl. After that 4-methyl. Then 6 carbon, so it is hexane. This is the name of this compound. अल्फाबेटिकली जो पहला आ रहा है उसको मिनिमम नंबर भी देना है और उसका नाम पहले लिखना है. बोला था ना भाई, अगर दो अल्काइल ग्रुप्स हैं, दोनों अलग अलग हैं, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से उनका नाम लिखना है. सो इट इज 3-ethyl, 4-methyl, hexane. Clear? Now we'll write name of 2-3 compounds, then we'll move towards next rule. This question, this name was asked in JEE paper. CH3, CH, C2H5, CH, C2H5 and CH3. IUPAC name पूछा था, JEE के पेपर में पूछा था, same compound. What is the IUPAC name of this compound? First option was 2,3 diethyl butane.
Is it correct? 2,3-diethyl butane. Is it correct? No, it's not correct. No. It's not 2,3-diethyl butane. ऐसे बच्चों ने सिलेक्ट किया चेन 2,3-diethyl butane. क्या बुराई है इसमें? Carbon chain selected. Number given correct. Name is 2,3-dimethyl butane. But it's not correct. Why it is not correct? Chain की length increase हो सकता है. How can we increase the chain length? See, whenever you find ethyl group, open it. It has 2 carbon inside. It will be written as CH2CH3. Same way, this can be written as CH2CH3. Now, if we select the chain, this will be the longest chain of carbon atom. So, whenever you have ethyl group, just open it. It itself has 2 carbon atom inside it. And if you open that ethyl group, then it contains 2 carbons. So, chain length increase. सबसे पहला रूल ही यही है कि select longest chain. हमने तो 4 कार्बन का चेन सेलेक्ट किया है, यहाँ पे तो 6 कार्बन का चेन मिलेगा. 1, 3, 4, 5 और 6. Now what is the correct name? 3,4-dimethyl 6 carbon, so it is hexane. This is the correct name of this compound. It's not 2,3-diethyl butane. Clear? We have to follow longest chain rule. After that, we have to give the number. Clear? Next. Second compound, CH3. Here CH, CH3, C2H5, CH3, CH2, CH3. If ethyl group is from second carbon to the terminal, second carbon पे હોય તો ઓપન કરવાનું. અહીંયા ક્યાં છે 1 2 થર્ડ ઉપર છે તો એને ઓપન કરવાની જરૂર નથી. ચેનની લેન્થ નહીં વધે. ક્યારે ઓપન કરવાનું? ક્યારે C2H5 ને ઓપન નહીં કરવાનું? તો ક્યારે ઓપન કરવાનું? when we have ethyl group at second carbon from the terminal. Second carbon from the terminal ethyl is attached. तो ओपन करोगे तो चेन की लेंथ बढ़ेगा. लेकिन in this ethyl group is at third carbon, terminal से 1 2 थर्ड पे प्रेजेंट है. 1 2 थर्ड पे प्रेजेंट है तो अगर आप इसको ओपन अप भी करते हो तो चेन का लेंथ इंक्रीज नहीं होगा. Select the chain, give the number, write down the name. First of all, we are selecting chain, straight chain. This is the longest chain. Now, how to give number to the chain so that sum of locant must be minimum. Sum of locant must be minimum. तो इसी साइड से पास होंगे सारे. 1 2 3 2 3 पे आ गए. अगर ऐसे आएंगे तो 1 2 3 4 पे ये सब्स्टिट्यूएंट्स मिलेंगे. So this way is the correct way of giving number. Now there are 5 carbons, so it will be named as pentane. Main chain का नाम होगा pentane. बाकी को कैसे नेम करोगे? There are 2 methyl groups, 1 ethyl group. Alphabetically ethyl come first. तो नाम आएगा पहले 3 ethyl. 3 ethyl. After that, 2 methyl groups are there at 2 and 3 positions. So we'll write 2, 3 dimethyl. And then pentane. 3 ethyl, 2 3 dimethyl pentane. Everything has meaning. स्लैश कहाँ डालना है, कॉमा कहाँ लिखना है, डाई किसके लिए यूज करना है, इथाइल क्यों पहले आया. Why ethyl come first? Because alphabetically पहला आ गया. Why we use dimethyl? Because there are 2 methyl groups. Why the number 2 3? Because 2 methyl groups are there at second and third position. Why it is pentane at last? Because in the parent chain total 5 carbon atoms are there. Clear? Select the longest chain of carbon atom. Secondly, give the number. मिनिमम नंबर मिलने चाहिए सब लोकेंट्स को. और अगर सम ऑफ लोकेंट सेम आता है दोनों तरफ से,
then the one which comes alphabetically first will be given least number. हाइफन लगाना है नंबर और नाम के बीच में, और दो नंबर्स को कॉमा से सेपरेट करना है. If two similar prefixes, alkyl groups are there, die word will be used. 3 then tri, 4 then tetra. And 2 or more different alkyl groups are there, use alphabetical order while writing their names. Clear? अब आते हैं नेक्स्ट पे. नेक्स्ट रूल है ब्रांच टू चेन. अभी तो हम बना रहे हैं वो सिर्फ मिथाइल इथाइल हमने यूज किया है, ये तो मेन चेन कहलाता है. इसको क्या बोलते हैं? पेरेंट चेन, मेन चेन. उसकी बात नहीं कर रहे हम बात कर रहे हैं साइड चेन की. हम बात कर रहे हैं ब्रांच्ड चेन की. तो ब्रांच्ड चेन अल्काइल ग्रुप अगर बहुत बड़ा है, वापस उसको नंबरिंग करने की जरूरत पड़े तो कैसे उसको नंबर करके कैसे नेम करना है. क्या पढ़ रहे हैं पर? इफ दिस ब्रांच्ड चेन अल्काइल ग्रुप इज कॉम्प्लेक्स. ये तो सिंपल है, मिथाइल दिख रहा है, इथाइल दिख रहा है. कभी कभी ये जो अल्काइल ग्रुप है यहाँ साइड में जो होता है ना, वो बहुत बड़ा होता है. बताती हूँ कैसे हो सकता है. तो ऐसे अगर बड़े अल्काइल ग्रुप्स हैं तो फिर उनको कैसे नेम करना है. सो नाउ वी विल स्टडी हाउ टू गिव नेम टू द कॉम्प्लेक्स साइड चेन. नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स साइड चेन. Name of complex side chain. This by the way ऐसे कोई चेन बना रखी है, मेन चेन, पेरेंट चेन जिसको बोलते हैं ना, वो है ये चेन. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कार्बन का चेन है फॉर एग्जाम्पल. क्लियर? यहाँ पे वो ग्रुप अटैच्ड है बड़ा सा, जिसमें कुछ ऐसा जुड़ा हुआ है. यहाँ पे CH3, फिर यहाँ पे CH, यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे CH3, ऐसा बड़ा सा ग्रुप है. अब अगर अपन चेन, ऐसी लंबी चेन सेलेक्ट करेंगे, यहां से चेन सेलेक्ट किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये पेरेंट चेन है. अब इसको कैसे नेम करेंगे? मिथाइल थोड़ी, ये मिथाइल लिख देंगे 6 मिथाइल. इथाइल भी नहीं है, खुद एक इतना बड़ा है, इसको कैसे नेम करेंगे हम? શું નામ છે આનું? કેવી રીતના એનું નેમિંગ કરવાનું? મેઇન ચેન થી આ કનેક્ટેડ છે, બરાબર? मेन चेन से जो कनेक्टेड कार्बन है इसका, उसको हमेशा 1 नंबर देना है. फर्स्ट थिंग, द कार्बन ऑफ द साइड चेन कनेक्टेड टू द मेन चेन कार्बन. मेन चेन कई છે? સ્ટ્રેટ. સાઇડ ચેન નું જે કાર્બન મેન ચેન ના કાર્બન થી કનેક્ટ હોય એને 1 નંબર આપી દેવાનો. આ આપ્યું 1 નંબર. ओके, अब इसको 1 नंबर लेके आपको लॉन्ग चेन बनाना है. इसके अंदर कैसे बनेगा? 1 तो इसी को देना है, फिक्स है. 1 2 3 4 ऐसे लॉन्ग चेन नहीं बनाना है. रूल फिक्स है कि जो मेन चेन के साथ जुड़ा होगा उसको ही 1 नंबर मिलेगा, उसको प्रायोरिटी मिलेगी क्योंकि वो उसके साथ जुड़ा हुआ है. तो इसको तो 1 देना है, दैट इज कंपल्सरी. अब आपको उसको 1 पकड़ के लॉन्ग चेन बनाना है. तो 1 2 एंड दिस 3, 1 2 and this 3. If you move down, it will be only 2 carbon. If you move this side, 2 carbons. Long chain बनाना है. So this तो 1 fix है. After that it is 2 and 3. अब इसको कैसे नेम करें? इस बड़े से का नाम हम ब्रैकेट में लिखेंगे हमेशा. बड़ा जो ये जो आ रहा है ना साइड चेन, उसका नाम हमेशा ब्रैकेट में लिखना है. कैसे लिखेंगे? देखिए 3 मिथाइल है, 1 2 3. 2 1 पे है, 2 पे है. कैसे नहीं लिखेंगे? 1 1 2 ट्राई मिथाइल, 1 1 2 ट्राई मिथाइल प्रोपाइल, ब्रैकेट बंद. 1 1 2 ट्राई मिथाइल प्रोपाइल, ब्रैकेट में लिखना इस बड़े से को. पेरेंट चेन तो बनाया है, लेकिन अगर ये सब्स्टिट्यूएंट बड़ा है तो उसमें आपको फिर से नंबर करना पड़ेगा. जब आप अंदर इसमें नंबरिंग करते हैं
तो the carbon that is connected to the main carbon chain should be given number 1. Then we'll write the name 112 trimethyl propyl. और फिर ये 2 डेकेन आ जाएगा इसमें. साइड चेन को कैसे नेम करना है वो बता दिया आपको. फॉर एग्जाम्पल, सपोज ये साइड चेन इस तरीके का है, CH3, here CH3, here CH2, CH3, this way. ये भी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, बड़ा सा सब्स्टिट्यूएंट है. हाउ टू गिव नेम? इतने बड़े का नाम कैसे लिखें? फिर से अंदर नंबरिंग करना पड़ेगा. कैसे करेंगे नंबर? इससे जो कनेक्टेड कार्बन है उसको 1 ही देना है, दैट्स फिक्स्ड. अब आप वहां से लॉन्ग चेन बनाइए, आइदर 1 2 3 और 1 2 3 और 1 2 2 तो नो चले, तो इधर 1 2 3 और 1 2 3 कुछ भी बना सकते हो. मैं ये 1 2 और ये 3 लिखा. अब इसको कैसे नेम करेंगे ब्रैकेट में? ये तो चेन बन गई, ये दोनों बाहर है. इसका नाम क्या है? इथाइल. इसका क्या है? मिथाइल. हमने अभी पढ़ा इथाइल को पहले लिखना है. सो इट इज 1 इथाइल, 1 methyl, after that 3 carbons, so propyl. Bracket बंद. 1 ethyl, 1 methyl, propyl is the name of this complex substituent. It's the name of this complex substituent. See one more. Suppose we have like this, CH2, C, CH3, CH3, CH3. इसको नेम करना है. अगर आपको ये पहचान में आता है तो हमने इसका नाम पहले लिखा था नियोपेंटाइल. अगर आप इसको पहचान सकते हो कि ये नियोपेंटाइल है तो यू कैन राइट द नेम नियोपेंटाइल, देयर इज नो प्रॉब्लम. That will do, नियोपेंटाइल. लेकिन अगर बाय द वे नए रूल में, नए आईयूपीएसी रूल्स में उसने थोड़ा सिंपल किया है, अगर हमको इसका नाम नियोपेंटाइल याद नहीं आता है, स्ट्राइक नहीं होता है, तो हम इसका नाम, ये गलत नहीं है नियोपेंटाइल, नियोपेंटाइल इज करेक्ट नेम, बट सपोज हमें ये याद नहीं आ रहा है, हम हमारे नए रूल के हिसाब से इसका नाम लिख सकते हैं. कैसे लिखेंगे? फिर से अंदर नंबरिंग करेंगे. ये कार्बन 1 2 and 3. So what is IUPAC name? Yeah, second name for this neopentyl. We can write this side chain as 2,2-dimethyl propyl. कैसे लिखेंगे? 2,2-dimethyl propyl. This way also we can write 2,2-dimethyl propyl. अगर आपको नियोपेंटाइल समझ नहीं आता है, नियोपेंटाइल पहचान में नहीं आता, तो आप ये भी लिख सकते हो, बट आना हमको दोनों चाहिए. अगर एमसीक्यू दिया है, उसने ये नाम दिया ही नहीं, यही दिया है, तो आपको इसे को टिक करना पड़ेगा. हाँ, अगर वो आपको बोलता है कि आप नाम लिखिए इसका, तो यू कैन यूज नियोपेंटाइल और यू कैन यूज 2,2-dimethyl propyl. So if the complex substituent is there, alkyl group is so big, then again we have to make a chain such that the carbon of the alkyl group connected to the main chain carbon should be given number 1. Select the long chain, write the name in the square bracket. इसको यूज करके कल हम बाकी का नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे. इसी को यूज करेंगे, इसको कैसे यूज करेंगे, और थोड़ा सा आगे हम नॉमेनक्लेचर को बढ़ाएंगे. Attend regularly classes so that you can understand how to give name to the compounds. सब आता है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट 12th स्टैंडर्ड में. टीचर बोलेंगे तो आपने पढ़ा हुआ है, तो उस वक्त क्यों सीखे? उस वक्त सीखने को बहुत सारा है. तो जो चीज अभी सीखनी है वो अभी ही सीखनी चाहिए. ABCD 12th स्टैंडर्ड में सीखेंगे थोड़ी चलेगा. क्लियर? प्रैक्टिस इट वेल. जितना पढ़ा रहे उतना प्रैक्टिस कीजिए. ओके बेटा, बाय.